Okay. Good morning, children. Now, Isha, Siddhi, Harshad, Huzaifa, they join after 9:36. They are latecomers now. They know the timing of the class, but even though they are coming late. Okay, dear children. So we are learning about the fraction, and the fractions are very much important, and you have to calculate and solve the problems on daily basis. Okay. Now I would like to ask Janit Godki. Janit, please tell me one fraction. Janit Godki, please tell me one fraction. जेनित की आवाज नहीं आ रही। हाँ, जेनित की आवाज नहीं आ रही मुझे। बोलो। 2/4, very good, Janit. Then 2/4 is one fraction. 2/4 एक फ्रैक्शन है, और आपने बिल्कुल सही बोला है। मैं और एक स्टूडेंट से पूछूंगा, मैं पार्थ भास्कर से पूछूंगा। पार्थ भास्कर, एक फ्रैक्शन बताओ मुझे। यस। एक फ्रैक्शन बताओ ना मुझे नहीं आता है फ्रैक्शन, प्लीज। सर मुझे नहीं आता। नहीं आता आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से आपको रिवीजन कराता हूं, आप कृपया ध्यान दें। ओके, मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन करता हूं। आपको आवाज आ रही है क्या? अथर्व पाटिल को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। यस सर। थैंक यू। अब मैं इस मोबाइल से टाइप करके बता रहा हूं, तो आपको पता चलेगा। आई होप इट इज विजिबल टू यू। मुझे पता है कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यस सर। ओके, मैं उसका वो बोर्ड ढूंढता हूँ। मेरा बोर्ड कहाँ गया? ये मिल गया मुझे बोर्ड। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, पार्थ भास्कर के लिए मैं बता रहा हूँ। पार्थ भास्कर ने मुझे अभी बताया कि सर मुझे फ्रैक्शन नहीं आता। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2/4। पार्थ भास्कर, आपको समझ में दिखाई दे रहा है कि आपको पार्थ भास्कर बोलेगा सिर्फ? यस सर। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब आ जाता है, आपको भी पता है, मोबाइल पर लिखते हैं तो माही सोना नहीं है। 2/4 और 2/4। पार भास्कर, 2 जो ऊपर लिखा है लाइन के ऊपर उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और 4 जो लिखा है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। 2 इज ए न्यूमरेटर और 4 इज ए डिनोमिनेटर। समझ में आ गया पार्थ भास्कर? यस। ओके, अभी मैं और एक चीज बताता हूं। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू दिस सर्कल. This circle is divided into 4 equal parts. This is for only the Parth Bhaskar. 1, 2, 3 and 4. I hope you can see. Now we will write this, that is the circle is a whole, so this is divided into 4 equal parts, but the half part is colored. Now I don't have the color. Yes, I can change the color also here. Now you can see here which color. Now the half part I have colored in the green way. So how much part is colored? 2 part is colored. Am I right, Parth Bhaskar? Out of Yes. 4 parts, 2 parts are already colored. Yes. So 2/4. How to read the fraction? 2/4 या 2/4. This is the fraction. ध्यान, सामने ध्यान दो। नाम ध्यान है और ध्यान नहीं है, मैं सब देख रहा हूं यहां से। So in this fraction 2/4, this is the fraction. This fraction is called as proper fraction. Why this is called proper fraction? Because there are 4 parts. Out of 4, 2 parts are colored. We can see when the numerator is small and the denominator is big, that time this fraction is called as proper fraction. संप्रीति बताओ मैंने क्या बताया?
संप्रीति मुझे बताओ मैंने क्या बोला अभी? सर आपने बोला कि 2 is numerator and 4 is denominator. So it is a proper fraction. And why this is proper fraction? Because numerator is always less than denominator. Very good, excellent. I hope all of you understand. One more example I will take it. Now here is one Cadbury chocolate. Yes, now you can see this Cadbury chocolate is divided into 6 equal parts. This Cadbury chocolate is divided into 6 equal parts. So I will write this fraction like this way. Okay, I have 6 parts of this Cadbury chocolate, but Arnav Godse want 8 parts of Cadbury chocolates. I have only 6 parts. I have only 6 parts. If I give all these 6 parts, still Arnav Godse is not happy. He say, I want 8 parts only. Arnav Godse is saying, I want 8 parts. So yes, I have only 6 parts, but he want 8 parts. So this is called as improper fraction. This is called improper fractions. When the numerator is big and denominator is small. When the numerator is big and denominator is small, and this is called as improper fraction. मानसी वेमोरी, बताओ मुझे मैंने क्या बोला? सर आपने चॉकलेट को 6 पार्ट में इक्वल किया, उसमें 8 पार्ट्स न्यूमरेटर है, 6 पार्ट्स डिनोमिनेटर है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूमरेटर बिग होगा तो denominator छोटा होगा, वो improper fraction होगा। Okay, anyhow you understand the concept. Now आपको fraction, numerator, denominator, proper fraction, improper fraction, ये सब आपको समझ में आ गया। और एक fractions होता है, अब वो fraction के ऊपर जाएंगे। ये नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, ध्यान का ध्यान अभी भी नहीं है, पहले बता रहा मैं। खिड़की के बाहर कुछ अच्छा दिखाई देता है तो मुझे भी बताओ फोटो खींच के। हाँ, मेरा बहुत ध्यान रहता है बच्चों पे। Now I am just showing you I have 2 rupees and half rupees. 2 is a whole number, 1 by 2. सर ये ऐसे कैसे लिखते हैं, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है ना? ये है मिक्स फ्रैक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते ये मैं बता रहा हूं, प्लीज कृपया करके ध्यान दो, हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज, द डिनोमिनेटर इज 2. Now here is a relation between these two, the whole number and the denominator is multiplication and the whole number and the numerator is the addition. फिर से बता रहा हूं मानसी, उसके साथ मत खेलो, आपको सामने ध्यान रखना है, उसको बोलो जाओ बाहर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया जाता है तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते मैं सिखा रहा हूं। पहले आपको एक इक्वल टू एक लाइन खींच लीजिए, डिनोमिनेटर लिख दीजिए 2. Now same denominator you write upstairs multiplied by the whole number plus 1. 2 into 2, 2 2s are 4. When we are doing the multiplication, 2 into 2 4 and 1 plus is there, that is the 5 upon 2. This is the mixed fraction is converted into improper fraction. मैं फिर से बता रहा हूं गौरी शिंदे, 2 is a whole number, 1 by 2. This is a mixed fraction. When we want to convert into the improper fraction, so first you draw a line, then you write, yeah मैं देख रहा हूं संप्रीति, you done nicely.
You write the denominator as it is. The whole number and the denominator has to be multiplied plus 1. जो भी उसका न्यूमरेटर होता है उसमें ऐड करना है. And then the answer is 2 into 2 plus 1 is equal to 5. And numerator as it is लिख दीजिए. All children will write this question fast. सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से लिखेंगे. हो गया? आई होप कि बच्चों ने जल्दी कर लिया होगा. मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देने वाला हूं. जल्दी क्विक होना चाहिए. संप्रीति कितनी फास्ट लिखती है. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हमको बाद में जो मैंने फोटो भेजा है वो भी पढ़ना है. सर डन. प्लीज चैट बॉक्स में आंसर करो, बीच में ना बोले. आप इतने सुंदर और अच्छे बच्चे हो, आपको पता है. गौरी ने यस बोला है, थम्स दिखा रही है. ओके दिव्यांका, नो प्रॉब्लम, यू कैन लिसन एंड कंप्लीट द वर्क. दिव्यांका का कैमरा नहीं चल रहा है और माइक भी नहीं. सर ये लिखना है क्या? नहीं, मैं लिख के देता हूं आपको. मैंने बोला ही नहीं आपको लिखने को. आप ऐसा क्वेश्चन पूछती हमेशा जब सारे बच्चे लिखकर बैठ गए तब आप पूछ रही है लिखना है क्या. मैथ्स में लिखना ही पड़ता है. चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अर्नव गोड से देख लिया मैंने. देखो कितना सुंदर लिख रहा है अर्नव गोड से. वेरी गुड. आगे की तरफ. नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन 5 is whole number and 3 by 4. अब इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है. ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं. सो first you draw the line and write the 4. The denominator is as it is. So denominator into the whole number plus 3. 4 into 5. पहले मल्टीप्लीकेशन करना है. 4 5s are 20 या 5 4s are 20 plus 3, that is 23 upon 4. So this mixed fraction is converted into this whole mixed fraction is converted into the improper fraction. जो मैंने वहां पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का साइन लिखा था वो देने की जरूरत नहीं है. ध्याना ने लिख लिया ऐसा लग रहा है मुझे. Dhyana, have you done this work? Dhyana, have you done this work? No, sir. Then why you are sitting there? As I requested you to write the question and answers immediately. Chaitanya, Parth Patankar's mic is not working. Okay, Parth, no problem. You can give the answer in chat box. मैं सब पढ़ता हूँ. सिद्धि वाघमारे ने लिख लिया. मैं यहाँ से देख रहा हूँ कौन कौन काम कर रहा है. और मेरा चैट बॉक्स पे बहुत ध्यान होता है. जो भी काम करते मैं पढ़ता हूँ. ईशा डन, हर्षद माने डन, गुड. उन्नति डन. हर्षद माने ऐसे 4-4 बार नहीं बताते. अथर्व डन, गौरी डन, उन्नति डन, सिद्धि डन, मंथन डन. दैट्स गुड, दैट्स गुड. वैष्णवी ने तो नोटबुक ही दिखाई मुझे. वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. चलो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ. The next mixed fraction is 3 whole number 5 by 4. चलो करके बताओ मुझे. ये मैं नहीं करूंगा अभी. मैं नहीं करूंगा अभी. ये आपको करना है. करो भाई करो, जल्दी करो. जिसका मैं नाम लूंगा, as soon as you complete, you put the message. जिसका मैं नाम लूंगा वही बच्चा नोटबुक दिखाएगा. मैं उसको पिन अप करके देखूंगा. Come on fast. You can write the answer, final answer in the chat box also, no problem.
If you got the answer, please write the answer. Isha has done. Very good, Isha. Isha is number 1. ईशा ठाकुर कंप्लीट फ्रैक्शन लिखो, स्लैश करके लिखो. मैं समझ गया आपकी बात. मानसी ने भी किया. That's good. उन्नति, your answer is right. अविरल, समीर डन. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. संप्रीति देख लिया मैंने. नंबर अच्छे से लिखो बेटा. गौरी, ध्याना, अथर्व, चैतन्य डन. अविरल नोटबुक सीधा करो. उल्टी दिखा रहा है तुम्हें जी, कैसे पढ़ना आएगा वो? हाँ ऐसे करो. यस गुड. वैष्णवी गुड. अर्णव गोड से गुड. देख लिया मैंने अर्णव गोड से. मैं क्विक देखता हूं. दैट्स गुड. लेट मी सॉल्व यू. सो 3 होल नंबर 5/4. 4 you will write at the denominator place. 4 into 3 plus 5. 4 3s are 12 plus 5 17/4. This is the improper fraction. अब मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और आपको वो सॉल्व करना है. मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. ये 17/5 लिखा है. मनीष मीना क्या कर रहे हो? Now last question I am taking for you. 6 whole number 4/7. करो ये सॉल्व. अब हम इसका उल्टा करना सीखेंगे. अवनी पाटिल ने अभी डन बोला है. मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है. 37 बच्चे ज्वाइन किए. 52 बच्चे शायद मेरे क्लास में. अविरल कितने स्टूडेंट है आपके क्लास में? 54 सर. 54 54 53 एक स्टूडेंट का टीसी गया है. ईशा ठाकुर कम ऑन फास्ट. 6 होल नंबर 4/7. आंसर दे रहा है फास्ट. आप आंसर भी लिख सकते हैं. ध्याना बहुत स्पीडली लिख रही है. ओके वैष्णवी गुड. ध्याना गुड. मानसी का आधा आंसर दिखाई दिया. गौरी का पूरा आंसर दिखाई दिया. गुड. वैष्णवी थोड़ा नोटबुक सीधा करो. आप उल्टा कर रही है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. हाँ यस यस यस. गुड गुड गुड. मैदांश खैरे डन. अवनी पाटिल डन. अविरल डन. ईशा डन. माही डन. अरे वाह, माही भी करने लग गई मैथ्स. वेरी गुड, बहुत अच्छा है. थोड़े से नंबर अच्छे लिखो. उन्नति जल्दबाजी में लिख रही है. अर्णव खराडे डन. ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड. सो आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना आ गया है. आप अभी स्मार्ट बन चुके हो. अभी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में करना सीखेंगे. रेडी? ये बंद हो गया क्या मेरा? स्क्रीन ब्लैक दिख रही है. स्क्रीन इज ब्लैक. हाँ आप अच्छे से देखो. सर अब स्क्रीन ब्लैक दिख रही है. आ जाएगा. डन. हाँ सर स्क्रीन इज हाफ. अभी आ रही है. यस सर. ओके, now you just see 7 you will try. 7 into 6. 7 into 6 plus 4 that is 42 plus 4 that is the 46/7. ये थोड़ा सा सेंसरी होता है तो समटाइम्स नंबर्स में नॉट बी क्लियर. प्लीज आप ध्यान दीजिए. आप ऐसे सुंदर सुंदर लिखेंगे. अभी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन. हाँ सिद्धि वाघमारे दिखाई दे रहा है मुझे. सिद्धि वाघमारे का दिखाई दे रहा था मुझे. दैट्स गुड. देखो सिद्धि वाघमारे तुरंत कैमरा चेंज कर देती है और मुझे दिखा देती है. ध्याना नोटबुक दिखाओ आपकी. सीधा करो. हाँ यस यस. गुड 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 गुड. मानसी वेरी गुड. मानसी कहाँ गई? मानसी. गौरी शिंदे नोटबुक सीधा करो. माही देख लिया मैंने.
माही देख लिया? गौरी सीधा करो, उल्टा दिखाई दे रहा मुझे। हाँ ये सीधा हो गया, दैट्स गुड। मानसी घूमकर आ गई, देखो खाना खा के आ गई वो अभी। चलो, now I am showing you the example of improper fractions to be converted into mixed fraction. पहले ध्यान दो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। Now improper fraction is here 15/4. 15/4 is an improper fraction. Arnav Kharade, why this is improper fraction? Please tell me. Because numerator is more than denominator. The numerator is bigger than the denominator. 15 is the numerator. This is a big number, and 4 is the denominator. 4 is a small number. That's why this is a improper fraction. Okay, this is a improper fraction. Now how to solve this? So we have to do the division. 15 divided by 4. चलो डिवाइड करो, 4 का टेबल, 4 3s are 12. अब मुझे 4 का टेबल आ जाता है. I got the answer. I got the answers. When you do the division, first you write the denominator as it is below the line. माही का ध्यान नहीं है, माही पहले सामने देखो. तो आपने डिवीजन कर लिया. You will write the denominator as the below the line. Now what answers you got? 3. What answers you got? 3 is the question. So you will write 3 is a whole number in front of the line. What is the remainder? Remainder is 3. You will write on the top of the line. Now you can do this. 4 into 3, 12. 12 plus 3, 15. Yes. Your answer is right. 15/4 is the improper fraction. माही को समझ में आ गया? माही थोड़ा सा सामने देख रही है, मैं देख रहा हूं. So 3 is the whole number, 3 is the numerator and 4 is the denominator. क्या किया हमने यहाँ पे? हमने improper fraction को mixed fraction में कन्वर्ट कर लिया. तो ध्याना ने लिख लिया होगा इसको अच्छे से, सही है ना ध्याना? ध्याना ध्यान देती है नहीं देती है? ध्याना मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको बोलना है. यस सर. ओके, तो आपने ये लिख लिया. अब मैं दूसरा क्वेश्चन और एक सॉल्व करके बता रहा हूं. ओके सर. आया रानी लिख लिया? यस सर. सर हाँ ये सर नो गोटी बोलो. समझ में नहीं आया ये. आप पहले इसे सॉल्व कर लो, मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं. प्लीज राइट फास्ट. सर हाँ सर, ये जो आपने ये डिवीजन किया ना, उसके डिवीजन में ऊपर वाला 3, ये ऊपर वाला 3 सामने लिखना है. ये हाँ. इसमें दोनों सेम आ गए ना, इसलिए कंफ्यूजन. मैं दूसरा लेता हूँ, आप लिखो पहले, इसलिए मैं दूसरा लेता हूँ. सिद्धि का देखा, जेनित का देखा, अंशुमन का देखा, अर्नव गोडसे का भी देखा. यस गुड. जेनित का देखा, मेदांश ने किया, अथर्व ने किया, अर्नव खराड़े ने किया. हाँ देख लिया मैंने. देखो मेरे 3 कैमरे ऑन है, मुझे सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे. सर स्क्रीन ब्लैक हो गई. देखो बच्चे क्या पूछने वाले मुझे पहले ही पता चल गया. सर स्क्रीन बैक हो गई. ये मोबाइल ज्यादा देर तक टच नहीं किया ना, वो बंद हो जाता है. सर वेट, ये क्यों बंद हो गया? ओके, आ गई क्या स्क्रीन? समझ में आ गई. हाँ आ जाएगी. अरे जिसे समझ में नहीं आया मैं उसको दोबारा समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो. इस स्क्रीन को सीधा तो होने दो पहले. अभी हो गई सीधी. आई होप ऑल ऑफ यू डन दिस. मुझे पता है कि आपने लिख लिया होगा. आई एम टेकिंग द नेक्स्ट improper fraction. 21 divided by 6. ये हो गया improper fraction. पहले आप इसको डिवीजन करेंगे.
6 3s are 21, 6 3s are 18. So minus karo, and how much you will get? 3. अभी ये भी ऐसे ही आ गया. 3 is the whole number, 6 is the denominator, and 3 is the remainder. अर्णव बोर्ड से आप ध्यान दीजिए, हमने 21 को 6 से डिवाइड किया, 6 3s are 18 and we got 3 remainder. So whatever we get the answer, that we will write in front 3, and remainder we will write on the top, and numerate denominator at the same place. Yes सिद्धि मैंने देख लिया, सिद्धि मैंने देख लिया, सिद्धि वाघमारे का देखा मैंने, जैनित का भी देखा मैंने. जो बच्चे क्विक दिखाते मुझे तुरंत पता चल जाता है. ध्याना का भी देख लिया मैंने. वेरी गुड. ध्याना थोड़े से अच्छे से लिखो ना बेटा नंबर, ऐसे लेजी लेजी लिख रही है ना सर. हाँ, अविरल का देखा, अर्णव खराड़े का देखा मैंने, मैं देख रहा हूं यहां से. प्रणेश रेड्डी का देखा. प्रणेश सर बोलो, और नोडू हर्षद माने नोडू को ऊपर करो. वैष्णवी ढोरे का देखा, गौरी का भी देखा. वैष्णवी ढोरे, गौरी, हर्षद देख लिया मैंने. चैतन्य कजारी देख लिया मैंने. और कौन है? और कोई दिखा नहीं रहा है, बाकी सो गए. समीर का देखा. समीर थोड़ा अच्छे से लिखो ना बेटा. चलो मैं और एक लेता हूं, आप करके दिखाओ मुझे अभी. चलो मैंने आपको हेल्प कर दी है. कौन कौन जल्दी कर रहा है मैं देखता हूं अभी. अब चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं. आयन रानी फास्ट करो. 47 divided by 5. 47 is the numerator. This is bigger in size. 5 is the denominator. 5 is the smaller in size. So we will divide 47 divided by 5. So 5 9s are. So 47 to be divided by 5. Then 5 9s are 45. Sir. Yes. So 2 will be left. ये आंसर किसका आया? अवनी पाटिल रीड करके बताओ आंसर. अवनी एंड मानसी वेमुराय रीड करो आंसर. 9 क्या है? 9 होल नंबर 2/5. पार्थ पाटनकर, योर आंसर इज राइट. अवनी रीड करके बताओ. 9 इज होल नंबर 2/5. डन मेधांश. चैतन्य का देखा, वैष्णवी ढोरे का देखा, देख लिया मैंने. आप नोटबुक रख लो. सिद्धि वाघमारे का भी देखा. सिद्धि वाघमारे 9 थोड़ा सा फ्रैक्शन के पास लिखो. श्रेष्ठ पाल का भी देखा, ध्याना का भी देखा. ध्याना अभी लास्ट वाला नहीं किया आपने. ये 47/5 मुझे. उन्नति का देखा सर. हाँ, उन्नति का देखा मैंने. उन्नति गुड. मेदांश खैरे का भी देखा. सिद्धि वाघमारे का देखा. 9 ज्यादा दूर लिखा है. चलो सर. हाँ, सिद्धि हो रहा है सर. मैंने सॉल्व भी कर दिया था सर. मेरा होगा सर. हाँ, अविरल जोशी का देखा मैंने. अब मैं तो इसको प्रेजेंटेशन को स्टॉप करता हूँ ताकि मुझे दिखाई देगा. वी लर्न, आज हमने ये चीज सीखी है. प्लीज बीच में ना बोले. व्हाट वी लर्न? We learn about conversion of improper fraction to the mixed fraction and mixed fraction to the improper fraction. आज हमने 2 चीजें सीखी है. कौन सी चीजें सीखी है? प्रॉपर फ्रैक्शन
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं सबको पिनअप करके देख रहा। गौरी थोड़ा पीछे ले लो, ज्यादा कैमरा के पास आ गई, नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अब मैं संप्रीति का देख रहा हूँ। हाँ यस, वेरी गुड संप्रीति, गुड। सबको पिनअप कर रहा हूँ मैं। सर नहीं बोले प्लीज। ये कौन है ये? अविरल जोशी। अविरल जोशी सही है आपका आंसर। उसके बाद ईशा ठाकुर का देख रहा हूं मैं। सर मत बोलो, मैं सबको पिनअप कर रहा है। वेरी गुड ईशा ठाकुर। उसके बाद मैं श्रेष्ठ पाल का देख रहा हूँ। वेरी गुड श्रेष्ठ पाल। श्रेष्ठ पाल ये 9 और 6 सब पास पास में आ गया, लाइन के सामने लिखो। जेनित गोड़की का देख रहा हूं मैं। ज्यादा हिला रहा है तू, जेनित ज्यादा हिला रहा है नोटबुक को। नोटबुक उल्टी है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सर मत बोलो बेटा। ये सिद्धि गोट से नोटबुक को सीधा करो, उल्टा है। आपका आंसर सही है फिर भी। मंथन का देख रहा हूँ। मंथन नोटबुक सीधा करो बेटा, उल्टा पुल्टा करते मैं कैसे पढ़ूंगा। हाँ आप सीधी हो गई नोटबुक, वेरी गुड। प्रणेश रेड्डी का देख रहा हूं मैं। वेरी गुड प्रणेश रेड्डी। उसके बाद अंशुमन का चेक कर रहा हूं मैं। अंशुमन नोटबुक सीधा करो बेटा। हाँ आपने सीधा किया ही नहीं अभी तक, नहीं देखूंगा मैं अभी। अर्नव खराड़े का देख रहा हूँ। वेरी गुड अर्नव खराड़े। 9 को अच्छे से लिखो थोड़ा। अंशुमन का फिर से देख रहा हूँ। अंशुमन तो नोटबुक को घुमा रहा है बस, नोटबुक को ज्यादा हिलाने नहीं है। आयन राणे का देख रहा हूं मैं। आयन राणे थोड़ा सा हिलाओ मत। गुड। ध्याना का देखा मैंने, ध्याना का देखा। कीर्ति का, कीर्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कीर्ति का अच्छे से, नहीं कैमरा इज ब्लर। कीर्ति का नहीं दिखाई दिया मुझे। और कौन रहेगा? मेदांश खैरे का देख रहा हूं मैं। मेदांश खैरे एक्सलेंट, मेदांश खैरे बहुत अच्छा लिख रहा है। मानसी व्यमुराय ने बहुत, मानसी उल्टा दिख रहा है, नोटबुक उल्टी कर दी, सीधी करो। कहां से दिखा रही है? नोटबुक की उल्टी पकड़ी है। समीर का देख रहा हूं मैं। समीर ऊपर को पीछे लो नोटबुक थोड़ा सा। हाँ सही है समीर, सही है। समीर का आंसर सही है। और ध्याना दिखा रही थी मुझे। ध्याना की नोटबुक दिखाई दे रही नीचे, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ लिखा है। ओके चलो अभी आप आगे ध्यान दो। अभी नोटबुक नीचे रख दो प्लीज, नीचे रख दो नोटबुक। अब मुझे दूसरा कंसेप्ट पढ़ाना, प्लीज इधर ध्यान दो। आपको ये चीज आपको एक एक करके दिखाना है मुझे। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू। आपको मैंने आपके क्लास में ये भेजा है, मुझे पता है कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यस, कैन यू सी दिस? यस सर। यस सर। पहले आप ध्यान से सुनेंगे, फिर डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। नाउ यू सी हियर, मैं बोलूं क्या? रुपीज पैसे, लीटर मिलीलीटर, किलोमीटर सेंटीमीटर, किलोग्राम एंड ग्राम। एज यू नो दीज आर द यूनिट्स वी आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ। अभी हमको उसको फ्रैक्शन के साथ सीखना है। आपके टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी दी है। मैं बोलूं क्या अविरल? अविरल मुझे परमिशन दे दो बात करने की। अविरल मैंने पहले ही कहा कि मैं पहले बोलूंगा फिर हम बात करेंगे, आप पहले बीच में बोल देते हो। अभी आपको मैं एक एग्जांपल सिखा रहा हूं। 4 कंसेप्ट यहाँ पे, रुपीज और पैसे का, लीटर और मिलीलीटर का, किलोमीटर और सेंटीमीटर का, किलोग्राम और ग्राम्स का। ये हमने 3rd में भी सीखा है, 4th में भी सीखा है। अभी होल, अभी आपके पास 20 रुपीज है। अब मैंने कहा हाफ रुपीज दे दो मुझे। आपके पास 20 रुपीज है, श्रेष्ठपाल के पास। श्रेष्ठपाल गिव मी द हाफ। आप श्रेष्ठपाल के पास 20 रुपीज है तो ही विल गिव मी द हाफ। 20 रुपीज का हाफ कितना आता है? 10 रुपीज। श्रेष्ठपाल ध्यान दो आगे, मैं आपका नाम ले रहा हूं, आप इधर उधर देख रहे हो। सो 20 रुपीज का हाफ, देखो मैंने उधर फ्रैक्शन में भी लिखा है 1/2, दैट इज हाफ। 20 रुपीज का हाफ हो गया 10 रुपीज। अब फिर मैंने कहा कि 20 रुपीज का मुझे क्वार्टर रुपीज दे दो। कितना रुपीज देना है? क्वार्टर, 1/4। तो 20 रुपीज को हमको 1/4 करना है, तो 20 रुपीज के 4 पार्ट्स बनाना है कीर्ति आचार्य। कितने पार्ट बनाने हैं? 4 पार्ट्स बनाने। तो 1 पार्ट ओनली कीर्ति इज गिविंग मी, दैट इज द 5 रुपीज। सो 20 रुपीज का 1/4 कितना हो गया? 5 रुपीज। अब आता है
3 क्वार्टर्स। कितना क्वार्टर? 3/4 क्वार्टर्स। मतलब आपके पास 4 रुपीज है, then you are giving me 3 rupees. But here I have given you 20 rupees is the whole. अब 20 rupees whole है तो मुझे 3/4 क्वार्टर कैसे करना पड़ेगा? 10 rupees and 5 rupees. Half rupees and quarter rupees will be the 3/4 quarter. 3/4 क्वार्टर कैसे किया मैंने? इधर का 10 रुपीज लिया और 5 रुपीज लिया, दैट इज द 15, दैट इज द 3 क्वार्टर्स। अब फिर मैंने एक लास्ट में एक अलग से क्वेश्चन दिया, 2 इज द होल नंबर एंड हाफ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ हाफ, 2 टाइम्स और हाफ। अभी 20 रुपीज का 2 टाइम्स कितना होता है? 40 रुपीज। 20 + 20 40, और 20 रुपीज का हाफ कितना होता है? 10 रुपीज। सो 40 and 10 रुपीज 50। उन्नति बच्चा, आपको समझ में आ गया मैंने क्या समझाया? Yes, उन्नति, हाँ, तो मैंने ये सिंपल क्वेश्चंस लिया। अभी 20 रुपीज को हम हाफ कर सकते हैं, क्वार्टर कर सकते हैं, 3/4 कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 20 रुपीज, और 20 रुपीज का हाफ, इसका भी एडिशन हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिखवाया, समझाया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। माही कामटे, मैं आपसे पूछूंगा, आई हैव 1 लीटर मिल्क। मेरे पास कितना है? 1 लीटर इज ए होल। आई वॉन्ट हाफ लीटर, सो आई विल राइट 500 ml, है ना? 1 लीटर का हाफ कितना होता है? 500। अब मुझे क्वार्टर लीटर चाहिए। क्वार्टर लीटर मीन्स 1/4। हाफ लीटर का भी हाफ, दैट इज 250 ml। सही है क्या माही? माही, यस। अब मुझे चाहिए 3/4 क्वार्टर। 3/4 क्वार्टर मतलब हाफ लीटर एंड 1 क्वार्टर लीटर। तो मैंने 500 and 250 को मैंने ऐड कर दिया, 750 मिलीलीटर। अर्णव गोड से समझ में आ गया? Yes, मैंने यहाँ पे 3/4 को क्या किया? हाफ लीटर और 1/4 क्वार्टर्स को मैंने ऐड कर दिया, तो 3/4 का मुझे आ गया 750 मिलीलीटर। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया है 2.5। अब 2.5 मतलब 2 into 1, दैट इज 2 लीटर। मैंने देखा 2 टाइम्स, मतलब 1 लीटर मैंने होल लिया था, 1 लीटर का 2 टाइम्स कितना हो गया? 2 लीटर। एंड हाफ, हाफ मतलब 500 मिलीलीटर। मतलब मुझे कितना चाहिए? 2.5 मतलब 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। आविरल जोशी, आपको समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। कीर्ति, ध्यान दे आगे। आई एम वॉकिंग एवरी डे 4 किलोमीटर। मैं कितने किलोमीटर जा रहा हूं? 4 किलोमीटर। लेकिन मुझे हाफ ही किलोमीटर, अभी मुझे हाफ उसका 4 किलोमीटर का हाफ किलोमीटर वॉकिंग करना है। तो 4 किलोमीटर का हाफ कितना हो गया? 2 किलोमीटर। नहीं, मुझे तो 1/4 किलोमीटर ही चलना है। अर्णव गोडसे को नींद आने लग गई। मुझे 4 किलोमीटर का 1/4 किलोमीटर ही चलना है। 4 किलोमीटर का 1/4 हो जाएगा 1 किलोमीटर। वेरी गुड कीर्ति। लेकिन मुझे 3/4 किलोमीटर चलना है, मतलब मैं हाफ किलोमीटर और 1/4 जो है उसको ऐड करूंगा, दैट इज 3 किलोमीटर। लेकिन मुझे यदि 2.5 चलना है, 4 का 2.5 चलना है, तो 4 into 2 8 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का हाफ कितना होता है? 500 मीटर। तो 8 किलोमीटर एंड 500 मीटर, ये हो गया उसका फाइनल आंसर। अब मैं अगली तरफ चल रहा हूं, मैं ध्याना के तरफ। ध्याना, मेरे घर में 2 किलोग्राम शुगर है। कितनी शुगर है मेरे घर में? 2 किलोग्राम शुगर है। मुझे आधी शुगर मुझे आपको देनी है। आपको शुगर पसंद है ना, मुझे आधी शुगर आपको देना है, हाफ शुगर। मतलब 2 किलोग्राम का हाफ कितना हो गया? 1 किलोग्राम। लेकिन मुझे क्या करना है? अभी 1 क्वार्टर देना है माही को। माही को 1 क्वार्टर देना है, तो क्या करूंगा मैं? उसका हाफ कर दूंगा, 1 किलो का भी हाफ कर दूंगा, दैट इज 500 ग्राम्स। वेरी गुड अवनी, 500 ग्राम्स। अब मुझे 500 ग्राम, अभी मुझे 3/4 क्वार्टर मुझे अर्णव गोडसे को देना है। 3/4 क्वार्टर को क्या करना पड़ेगा?
1 kg एंड 500 ग्राम्स लिखना पड़ेगा। यस पाटनकर, 1 kg एंड 500 ग्राम इज ए 3/4 क्वार्टर ऑफ 2 kg। 2 kg का 3 पार्ट। और मुझे यदि 2.5 kg शुगर लेनी है, 2.5 kg मतलब 2 kg का 2 टाइम्स, that is the 4 kilograms and 500 grams. 2 into 2 4 और that is the 500 grams। तो आपको इस तरह से ये टेबल बना के मैंने समझाया है। पहले मैंने इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन सिखाया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर सिखाया, और अभी मैंने ये टेबल सिखाया। आप इसको अच्छे से लिखेंगे, आप इसको अच्छे से लिखेंगे, और फिर आप इसके नीचे मैं और 4 क्वेश्चन देने वाला हूं। मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूं आपको। आई विल सेंड यू ऑन द व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप को आपको भेज देता हूं। आप इसके नीचे जैसे ₹20, 1 लीटर, 4 किलोमीटर, 2 kg है, मैं उसके नीचे और 4 दे दूंगा। आप उसको पूरा करेंगे। समझ में आ गया ध्याना? समझ में आ गया? अभी आप इसको देख देख के करेंगे। पहले इसको आप देख देख के करेंगे, फिर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम पे भी लेके जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना काफी है। आप इसको ध्यान से लिखो। Have a nice day.